آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ شہر کی اہم کمرشل مارکیٹوں میں پارکنگ کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا۔ اردو بازار سے ملحقہ مارکیٹوں کے تاجر اور گاہک موٹر سائیکلیں، گاڑیاں دکانوں کے سامنے ہی پارک کرنے لگے۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد علی سے۔ علی بتائیے۔ جی، شہر کی تمام کمرشل مارکیٹوں میں پیرا فورسز جو سی وہ کارروائی کر رہی ہے۔ لاہور کے اردو بازار کے اندر پیدل چلنے کا بھی راستہ نہیں ہے، کیونکہ تاجروں کی جتنی موٹر سائیکلیں، گاڑیوں کی پارکنگ کا مسئلہ اس وجہ سے بڑھ گیا ہے کہ واحد ایک پارکنگ کی گراؤنڈ تھی اردو بازار کو، جو لوگوں کو سہولت دیتی تھی تاجروں کو، وہ ختم ہو چکی ہے پرائیویٹ آنر کی وجہ سے۔ اور اس کا متبادل یہ ہے کہ اب فیصلہ آپ کو کیمرہ مین دکھائے گا کہ مجبوراً جو ان سے لوگ جتنے بھی آ رہے ہیں، چاہے وہ گاہک ہیں، وہ دکاندار ہیں، چاہے وہ ریڈی فروش ہیں، اپنی موٹر سائیکلیں، اپنی ریڈیاں جو سی ہیں وہ بازار میں کھڑی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو چلنا محال ہے۔ اور بالخصوص نہ صرف یہ بلکہ اردو بازار سے ملکہ جتنی بھی بازار ہے، اس میں پرانی انارکلی، نیو انارکلی، جبکہ اس میں جو تھانہ انارکلی لوہاری گیٹ کے اطراف کی جتنی بھی مارکیٹیں، ان کو یہ مین سڑکیں جو سی ہیں وہ شہریوں کو سہولت فراہم کرتی ہیں، راستہ فراہم کرتی ہیں۔ لیکن جو صورتحال یہاں پہ غیر قانونی پارکنگ کی اور غیر قانونی تجاوزات کی ہے، اس کے باعث ان بازاروں سے دن کے اوقات میں گزرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہاں پہ ریسکیو کو اگر آپریشن کرنا پڑ جائے، وہ آگ کی کال چلی جاتی ہے، اس صورت کے اندر بھی یہاں ریسکیو کو گاڑیاں داخل نہیں ہو سکتی۔ درجنوں کی تعداد میں جتنے بھی بازار، گلیاں چھوٹی ہیں، بڑی ہیں، تمام میں پارکنگ موجود ہے۔ دکانوں کے سامنے دکانداروں کی اپنی گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، کسٹمرز کی۔ اس کے بعد یہاں سے رستہ جو عام پارکنگ کے لیے، عام شہریوں کے لیے، وہ گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شہریوں کو یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ ان کا یہ مسئلہ حل کیا جائے اور پارکنگ کا مناسب بندوبست کیا جائے، جس طرح نیلا گنبد کے اندر کیا گیا۔ اسی طرح اردو بازار، لوہاری، انارکلی کو بھی متبادل پارکنگ فراہم کی جائے، تاکہ آسانی سے شہری جو ان سے شاپنگ کے لیے آتے ہیں وہ اپنی گاڑیاں محفوظ مقامات پہ کھڑی کریں، اس کے بعد شاپنگ کریں اور بحفاظت اپنے گھروں کو واپس جائیں۔ جی، آپ کا شکریہ۔ مونسون بارشیں ختم ہونے کے بعد گرمی اور حبس نے سر اٹھا لیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب اضافہ ہونے کے باعث گرمی اور حبس کی شدت زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ ایک ہفتے بارش ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ فضائی آلودگی میں بھی تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 112 تک پہنچ گیا۔ مزید محمد یاسین سے جانتے ہیں۔ بتائیے یاسین۔ جی، مونسون بارشیں ختم ہونے کے بعد حبس اور گرمی نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے کے باعث حبس اور گرمی کی شدت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ ایک ہفتے تک بارش ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور گرمی کے جو مونسون بارشیں ختم ہونے کے بعد جو فضائی آلودگی ہے اس نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا ہے، اور انسانی صحت کے لیے موزوں ترین ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 0 سے 50 ہونا چاہیے، اور 50 کے پاس جس تناسب سے یہ ایئر کوالٹی انڈیکس بڑھتا جاتا ہے انسانی صحت کے لیے، اسی تناسب سے خطرناک بھی ہوتا جاتا ہے۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس اس وقت 112 ہے، جو بہت زیادہ ہے اور دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ یہاں یہ بتاتا چلوں کہ شہر کا اس وقت کم از کم درجہ حرارت 26 اور زیادہ سے زیادہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 57%، ہوا کی رفتار 6 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور حد نگاہ جو ہے وہ 7 کلومیٹر تک ہے۔ جی، آپ کا شکریہ۔ سندھ پولیس کے دوسرے اسپیشلائزڈ ٹریننگ کورس کے زیر تربیت ڈی ایس پیز کا ٹریفک ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ ایس پی ٹریفک ہیڈ کوارٹر سید ندیم عباس نے زیر تربیت آفیسرز کو لائسنسنگ، انفورسمنٹ اور حادثات سے متعلق بریفنگ دی۔ ایس پی سید ندیم عباس کا کہنا تھا کہ آپ سب نے فیلڈ میں عوامی سہولیات کے لیے بہترین کام کرنا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سندھ پولیس کے دوسرے اسپیشلائزڈ ٹریننگ کورس کے زیر تربیت ڈی ایس پیز کا ٹریفک ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ ایس پی ٹریفک ہیڈ کوارٹر سید ندیم عباس نے زیر تربیت آفیسرز کو لائسنسنگ، انفورسمنٹ اور حادثات سے متعلق بریفنگ دی۔ ایس پی سید ندیم عباس کا کہنا تھا کہ آپ سب نے فیلڈ میں عوامی سہولیات کے لیے بہترین کام کرنا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں سونے اور چاندی کے نرخ ریکارڈ سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ ملکی مارکیٹ میں ایک ہی روز میں سونا 5,000 روپے فی تولہ مہنگا، دوسری جانب چاندی کے نرخ بھی بڑھ گئے۔ عالمی اور مقامی سطح پر سونے اور چاندی کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ملکی مارکیٹ میں سونا 5,100 روپے فی تولہ مہنگا ہو گیا، جس سے 24 کیرات فی تولہ سونا 3,98,800 روپے کا ہو گیا، جبکہ 10 گرام سونا 4,372 روپے اضافے سے 3,41,906 روپے کی سطح پر آ گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت $51 اضافے سے $3,770 کی بلند ترین سطح پر
पहुंच गई। 24 कैरात फी तोला चांदी की कीमत 400 रुपए इजाफे से 4,637 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। FBR का राजदारी कानून को मजीद मजबूत बनाने का फैसला, मुखबिरों के लिए इनामी रकम 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने की तजवीज़। बड़े घर और महंगे घरों में रहने वाले सिर्फ चंद हज़ार टैक्स दे रहे हैं। FBR के टैक्स चोरों के घरेलू मुलाजमीन, रिश्तेदारों और हमसायों से मालूमात लेने की तजवीज़। टैक्स चोरों के खिलाफ मालूमात देने वालों को भारी इनाम की पेशकश। टैक्स चोरों के हमसाए, कज़न्स और घरेलू मुलाजमीन भी इनामी स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे। मालूमात फराहम करने वालों के नाम राज में रखे जाएंगे। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू आयशा फारूक की जानिब से इनामी रकम बढ़ाने का तरमीमी मुसव्वदा FBR भेज दिया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत और सकाफत अज़मा बुखारी ने कहा कि तारीख की बदतरीन सैलाबी तबाहकारियों पर इमदादी सरगर्मियों से वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने तर्ज़ हुक्मरानी को नया रंग दिया है। कोई दूसरा आवाम के गम और खुशी में यूँ शरीक नहीं हुआ। पंजाब को अगर डैम की ज़रूरत हुई तो ज़रूर बनेगा। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत और सकाफत अज़मा बुखारी की DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं वज़ीर आला मरियम नवाज और उनकी टीम सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। सैलाब से मुतासरा किसानों को ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में शामिल किया जा रहा है। सैलाब में मुकम्मल नुकसान पर 10 लाख और जुज़वी नुकसान पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जानवरों के नुकसान पर भी माली इमदाद फराहम की जाएगी। आपने चीफ मिनिस्टर साहिबा को पंजाब का शायद ही कोई इलाका हो जहाँ पर सैलाब आया और वहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद नहीं गई। उनकी पूरी टीम्स पहले ही ग्राउंड के ऊपर मौजूद थी जो अपना काम कर रही थी। अगर पक्का घर किसी का मुकम्मल गिरा है तो उसको 10 लाख रुपया जो है वो मुआवजा अदा किया जाएगा। उसके साथ साथ जुज़वी तौर पर जो घर गिरा है उसको 5 लाख रुपए का मुआवजा अदा किया जाएगा। जुज़वी घर में कच्चा घर भी शामिल है जिसके अंदर जो कच्चे घर थे उनको भी जो है 5 लाख रुपए का जो है वो मुआवजा मिलेगा। गायें और भैंसें जो है उनके ज़र तलाफ़ी के तौर पर 5 लाख रुपया जो है अगर कोई गाय और भैंस जो है वो अगर मुतासिर हुई है तो उसको मिलेगा। और जो छोटे जानवर हैं उसके लिए 50,000 रुपया चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अनाउंस किया है। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि दिसंबर तक अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1 लाख घर मुकम्मल कर लिए जाएंगे। सैलाब मुतासरीन को बैरूनी इमदाद नहीं बल्कि पंजाब के अपने वसाइल से दी जा रही है। सैलाबी सियासत करने वाले अवाम को गुमराह कर रहे हैं। पंजाब को डैम बनाने से कोई नहीं रोक सकता। पीपल्स पार्टी ने सिंध को आसार कदीमा बना दिया। अपनी छत अपना घर है उसके अंदर भी 80,000 घर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ज़ेर तामीर है जिसके अंदर बहुत सारे हज़ारों घर जो है वो बन भी चुके हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला दिसंबर तक जो है इसकी तादाद 1 लाख तक भी जाएगी। तो ये तमाम घर भी जो है वो अपने तौर पर जो है वो हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सैलाबी सियासत भी हो रही है और सैलाबी सियासत जो लोग कर रहे हैं उनके लिए मैं सिर्फ जो है वो दुआ की उम्मीद कर सकती हूँ। वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी का कहना था कि किसी पाकिस्तानी को शक नहीं होना चाहिए कि सऊदी अरब जैसी मुकद्दस ज़मीन की हिफाजत का फरीज़ा हमारे लिए सआदत है। मज़हब को सियासत से दूर रखना चाहिए। सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब राजा परवेज़ अशरफ का कहना है कि पंजाब सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। सबको मिलकर मुतासरीन के दुख में शरीक होना होगा। बिजली के बिल मुआफ़ और काश्तकारों के लिए ख़ुसूसी पैकेज दिया जाए। पीपल्स सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में पीपल्स पार्टी लाहौर के ज़रिए तमाम तकरीब थीम पार्क, बरकत कॉलोनी, मोहलनवाल और खालिक नगर के 100 सैलाबज़दा खानदानों में इमदादी रकूम तकसीम। सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब राजा परवेज़ अशरफ ने तकरीब में कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से लाखों लोग मुतासिर हुए, घर और फसलें तबाह, जानवर बह गए। नाजुक घड़ी में हम सबको मिलकर मुतासरीन के दुख में उनके पास जाकर शरीक होना होगा। सैलाब में इनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, इनके घर तबाह हो गए, इनके पास जो गल्ला था, खाने पीने की अशिया थी वो बह गई, जानवर जो थे इनके पास मवेशी थे वो चले गई, फसलें तबाह हो गई। गर्ज की एक बड़ी तबाही और सब जगह सैलाब ने तबाहकारियाँ की, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई सूबा मुतासर है तो वो पंजाब का है। राजा परवेज़ अशरफ ने मजीद कहा कि पंजाब हुकूमत का पैकेज अच्छी चीज है। सैलाब मुतासरीन की 2007 के ज़लज़ले की तरह मदद करना होगी। पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरीन के लिए हर फोरम पर आवाज उठाएगी। पाकिस्तान की कौम बड़ी बहादुर कौम है। हमने देखा कि ज़लज़ले के जब आया था बड़ा ज़लज़ला 2005 वाला, किस तरह हमने अपने बहन भाइयों की मदद की। इसी तरह अब भी ये एक बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। हुकूमत खाए वो वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, लोकल गवर्नमेंट है, सब ही मशगूल है इस काम में। पीपल्स पार्टी या कोई भी जमात हो, कोई मजहबी जमात, हम सब आपके साथ हैं और हमें एहसास है कि आप तकलीफ में हैं
इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मेरी बहन ने कहा, समीना खालिद ने, हम हर फोरम पर आपकी आवाज़ उठाएंगे। तकरीब का एहतमाम राजा जमील मंच, चौधरी रियाज और राना अशर निसार ने किया। इस मौके पर सेक्रेटरी इतलाल शहजाद सईद चीमा, समीना घुरकी, नरगिस खान, अमजद जट और आसिफ नागरा भी मौजूद थे। पंजाब में सैलाब से नुकसानात की नई रिपोर्ट जारी कर दी गई। मजमूई तौर पर 27 अजला और 47 से जायद मौजाजात मुतासर हुए। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के बाइस 47 लाख अफराद मुतासर हुए। पंजाब में आने वाले शदीद सैलाब के असरात अभी तक पूरी शिद्दत से महसूस किए जा रहे हैं। PDMA की तरफ से जारी की जाने वाली नई रिपोर्ट में बताया गया है कि पंजाब में सैलाब से 134 अफराद जहाँ बक हो चुके हैं। मजमूई तौर पर पंजाब के 27 अजला और 4700 से जायद मौजाजात मुतासर हुए। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के बाइस मजमूई तौर पर 47 लाख अफराद मुतासर हुए। सैलाब से मुतासरा अजला में 271 रिलीफ और 300 मेडिकल कैंप्स काम कर रहे हैं। सैलाब में फंस जाने वाले 26,38,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक शहरियों के नुकसानात का अजाला आसान तरीका कार से किया जाएगा। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। दरिया सतलुज के अलावा पंजाब के दीगर दरियाओं में पानी के बहाव की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर मामूल पर आ गई। दरिया सतलुज में दरमियाने से निचले दर्जे के सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सैलाब से मुतासर इलाकों में भी पानी की सतह में कमी का अमल जारी। शदीद बारिशों के बाइस बिफरने वाला दरिया सतलुज अभी तक किसी कदर गुस्से में दिखाई दे रहा है। सतलुज के अलावा पंजाब में दीगर तमाम दरियाओं में पानी के बहाव की सूरत हाल मामूल पर आ गई है। दरिया सतलुज गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव 83,000 और सुलेमानकी के मुकाम पर 81,000 क्यूसिक है। दरिया चनाब में खानकी हेड वर्क्स के मुकाम पर पानी का बहाव 29,000, कादराबाद 25,000 और हेड तरीमू पर 31,000 क्यूसिक है। पंजनत के मुकाम पर पानी का बहाव 1,11,000 क्यूसिक है। दरिया रावी में जसड़ के मुकाम पर पानी का बहाव 6,000, शाहदरा 5,000 और बलोकी हेडवर्क्स के मुकाम पर 24,000 क्यूसिक है। डायरेक्टर जनरल PDMA पंजाब इरफान अली काठिया के मुताबिक सैलाब से मुतासर इलाकों में पानी की सतह में भी तेजी से कमी हो रही है। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। वफाकी हुकूमत का तालीम दोस्त इक़दाम। इंटर इम्तहानात में सरकारी कॉलेजेस के 15 पोजीशन होल्डर्स तलबा में इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने बाइक्स की चाबियां बच्चों के हवाले की। वफाकी हुकूमत की तरफ से इंट्रा इम्तहानात में सरकारी कॉलेजेस के 15 पोजीशन होल्डर्स तलबा में इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम। तकरीब की मेहमान खुसूसी कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने बाइक्स की चाबियां बच्चों के हवाले की। पोजीशन होल्डर्स तलबा और तालिबात का कहना था कि हुकूमत की जानिब से मुफ्त बाइक्स की तकसीम खुश आइंद इक़दाम है। ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है जब हम हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, तो इसमें हमारी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। एंड थैंक यू प्राइम मिनिस्टर। ये जो बाइक हमें दी जा रही है इसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है कि वो इसी तरह अच्छे मार्क्स अचीव करते रहें। स्पेशली फीमेल्स के लिए ये वुमेन एम्पावरमेंट के काफ़ी अच्छा स्टेप है। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नज़ीर ने तकरीब में कहा कि इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलने से तलबा व तालिबात के लिए ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो जाएगा। वो बच्चे जो पब्लिक सेक्टर के हैं और उन्होंने पोजीशन हासिल की है 2024 के एग्ज़ाम में, जो लास्ट ईयर था एनुअल एग्ज़ाम में, तो उनको जो है जी ये स्कूटीज़ जो है डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। बाइक्स हासिल करने वाले तलबा व तालिबात में लाहौर बोर्ड से मलिक ताहा, खिजर, महम माया, मोहम्मद मोइज, अहमद मुरसलीन, जुनेद हाकिम अली, जबकि दीगर बोर्ड से फातिमा मुनीर, अब्दुल रहमान, अहमद रेहान वगैरह शामिल हैं। एक्सपो सेंटर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर तीसरी बैन अवी कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का इनेकाद कॉन्फ्रेंस कैंसो विंग बिलो जोन के उन्वान से मुनक़िद हुई। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने नुमाइश में लगे मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। एक्सपो सेंटर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर तीसरी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस और नुमाइश मुनक्किद की गई। कॉन्फ्रेंस कंसर्न विंग ब्लू डायमंड के उन्वान से सार्टनेट पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम मुनक्किद हुई। कौमी और बैनुल-अक़वामी माहिरीन ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना था, बारिश के पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी न सिर्फ एक रवायती अमल है बल्कि जदीद ज़रूरत है। सीनियर मिनिस्टर पंजाब को फॉर मेकिंग श्योर दैट स्टार्टिंग फ्रॉम preemptive measures to bringing in modern technologies to making sure that the carbon credit regime comes on, to rainwater harvesting, to rainwater storage, to their recycling and efficiency and technology that brings in and saves a lot of money, a lot of effort and makes this climate better for us. ऑर्गेनाइजर ज़हीर हुसैन गर्देजी का कहना था कि कॉन्फ्रेंस का मकसद पानी की कमी और सैलाब के मुश्तरका खतरे पर बातचीत के लिए बर वक्त प्लेटफॉर्म फ्राहम करना है। कॉन्फ्रेंस में श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भारत, ईरान, अफगानिस्तान, भूटान और स्विट्जरलैंड के माहिरीन ने शिरकत की। राना सिकंदर हयात और दीगर मेहमानों में इजाज़त शेयर्स भी तकसीम की गयी।
लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू मच्छरों की अफजाइश में इजाफा। 24 घंटों में डेंगू के 39 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में डेंगू के 8 मरीज रिपोर्ट हुए। प्रोफेसर जवेद अकरम का कहना है कि डेंगू से अगर कोई मौत होती है तो ये हॉस्पिटल और डॉक्टर्स की गफलत होगी। पंजाब भर में डेंगू बेकाबू। गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के 39 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में डेंगू के 8 मरीज सामने आ गए। शहर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 171 सूबे भर में 1088 तक पहुंच गई है। प्रोफेसर जावेद अकरम का कहना है कि आने वाले दिनों में डेंगू केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा होने का खदशा है। ताहम डेंगू से कोई मौत होती है तो यह अस्पताल और डॉक्टर्स की गफलत होगी। इस वक्त बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है लाहौर में और पंजाब में, और उसकी वजह एक ये टेम्परेचर का बहुत मौजू होना है कि हम गर्मी से सर्दी में एंटर हो रहे हैं। तो ये आइडियल टेम्परेचर है। एडीज़ इजिप्शिया जो मच्छर इसको कैरी करता है वायरस को, उसकी अगर डेंगू किसी को हो जाता है तो तकलीफ़ तो उसको होती है, लेकिन बर वक्त उसकी तशखीस हो जाए, इलाज हो जाए तो ज़ीरो मोर्टेलिटी होनी चाहिए। कोई मरीज़ अगर डेंगू का मरता है तो इसमें नेगलिजेंस है हमारी। अस्पतालों में डेंगू काउंटर ताहाल गैर फाल। डेंगू के मरीजों को इलाज मुआवजे में मुश्किलात का सामना है। डेंगू के बेशतर मरीज निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स पर रिपोर्ट हो रहे हैं। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि डेंगू से बचाव के लिए शहरी SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। सरकारी इदारों में डेंगू लार्वा बरामदगी की सूरत में मुतल्लिका ऑफिसर के खिलाफ मुकदमे के इंदराज का हुक्म। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं सैलाब और मानसून के बायस डेंगू का खतरा ताहाल मौजूद है। सूबाई वज़ीर सेहत और बहबूद आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत ताहम इजलास। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, DDOs हेल्थ और अलाइड डिपार्टमेंट्स के नुमाइंदों की शिरकत। सूबाई दारुल हुकूमत में इंसदाद डेंगू के हवाले से कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। वज़ीर सेहत का सरकारी इदारों में डेंगू लार्वा बरामदगी की सूरत में मुतल्लिका अफसर के खिलाफ मुकदमे के इंदराज का हुक्म। DC लाहौर को इंसदाद डेंगू मुहिम का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने और CEO हेल्थ को निजी अस्पतालों और जनरल प्रैक्टिशनर्स से भी डाटा लेने की हिदायत। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा इंसदादी कार्रवाइयों में सीनियर अफसरान की शिरकत यकीनी बनाई जाए। कानून सबके लिए बराबर। इंसदाद डेंगू के तहत बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जाएं। इंसदाद डेंगू कार्रवाइयों में क्लिनिक ऑन व्हील्स को भी शामिल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का कहना था लाहौर के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इंसदाद डेंगू कार्रवाइयों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मच्छरों की अफजाइश और हॉटस्पॉट एरियाज को मुकम्मल कवर कर रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बैंकिंग कोर्ट के मुलाजमीन को जुडिशल अलाउंस देने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोर्ट के मुलाजमीन को फौरी जुडिशल अलाउंस देने से इनकार कर दिया। बैंकिंग कोर्ट के मुलाजमीन को जुडिशल अलाउंस देने की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से एहसन भून अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि बैंकिंग कोर्ट के मुलाजिम करते क्या हैं। बैंकिंग कोर्ट के मुलाजमीन तो अपनी सीट पर नहीं बैठते, सारा दिन वकील मुसद्दिका कॉपी लेने के लिए उनके पीछे और ये आगे होते हैं। मुतादिद वकला ने शिकायत की कि बैंकिंग कोर्ट के मुलाजमीन काम ही नहीं करते। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने मजीद कहा कि जुडिशल अलाउंस उनको मिलता है जो काम करते हैं। दौरान समाअत एहसन भून ने अदालत से इस्तदा की कि ये मजदूर तबका है, इनको भी रिलीफ दिया जाए। अदालत ने कहा कि बैंकिंग कोर्ट के मुलाजमीन को फौरी रिलीफ नहीं दे सकते, इनके केस को मरकजी केस के साथ सुनकर फैसला करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोर्ट के मुलाजमीन को फौरी जुडिशल अलाउंस देने से इनकार कर दिया। शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के 3 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें इंतदाई दहशतगर्दी अदालत ने वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। अदालत ने दरखास्तों पर समाअत 10 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के 3 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत। ड्यूटी जज अरशद जावेद ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पुलिस ने सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज किए, जलाओ घेराव से कोई लेना देना नहीं, जमानत कानूनी है, अदालत से जमानत मंजूर करने की इस्तदा है। शाह महमूद कुरैशी के वकील ने कहा कि 1 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है, जमानत की दरखास्तें ज़ेर समाअत हैं। अदालत आज वकला के दलाइल सुने और जमानत की दरखास्तों पर कानून के मुताबिक फैसला करे। शाह महमूद कुरैशी को जमानत के बुनियादी हक से महरूम रखना खिलाफ कानून है। अदालत ने रिमार्क्स किए कि मुतालिका जज छुट्टियों पर हैं, वो वापस आकर दरखास्तों पर समाअत करेंगे। अदालत ने वकला को दलाल के लिए तलब करते हुए समाअत 10 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जिना हाउस, मुगलपुरा और जमान पार्क के बाहर जलाओ घेराव के मुकदमा दर्ज हैं। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। मनशियात केस में पुलिस सब इंस्पेक्टर समेत 4 मुलजिमान की अबूरी जमानत पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिमान की अबूरी जमानत में 30 सितंबर तक तोसी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी।
منشیات کیس میں ملزموں کی عبوری ضمانت کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس علی ضیاء باجوہ نے سماعت کی۔ ملزمان کی جانب سے ایڈوکیٹ امجد اقبال نے دلائل دیے۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا کہ ملزموں کے خلاف مارچ 2025 میں 1560 گرام چرس کا مقدمہ تھانہ کوٹ لکھپت میں درج کیا گیا۔ تفتیشی ڈی ایس پی ریحان جمال نے ذاتی رنجش پر سب انسپکٹر سفیان کو مقدمے میں نامزد کر دیا۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ تفتیش میں خاتون کو بھی مقدمہ میں نامزد کیا گیا۔ ڈی ایس پی نے تفتیش میں ملزموں کو طلب کر کے بیان ریکارڈ نہیں کیے۔ مرکزی ملزم حبیب اللہ کی ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ سماعت کے دوران یہ موقف بھی اپنایا گیا کہ درخواست گزار تفتیش سے مطمئن نہیں۔ درخواست گزاروں نے تفتیش تبدیلی کے لیے ڈی آئی جی کو درخواست دے رکھی ہے۔ ڈی آئی جی نے ابھی تک تفتیش کی تبدیلی درخواست پر فیصلہ نہیں کیا۔ عدالت ملزموں کی درخواست ضمانت منظور کرے۔ عدالت نے ملزموں کی استدعا منظور کرتے ہوئے عبوری ضمانت میں 30 سپٹمبر تک توسیع کر دی۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ حسان نیازی کی ملٹری کورٹ اور کورٹ مارشل کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے آفس کے لگائے گئے اعتراضات پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سید شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ حسان نیازی نے ملٹری تحویل میں لینے کے نوٹیفیکیشن اور کورٹ مارشل کو چیلنج کر رکھا ہے۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ حسان نیازی کی تحویل ملٹری کو ایس ایچ او کی جانب سے دی گئی ہے۔ باقی لوگ جو ملٹری کے حوالے کیے گئے وہ اے ٹی سی کورٹ کے حکم کے تحت ہوئے۔ رجسٹرار آفس کے اعتراضات درست نہیں، عدالت اعتراضات ختم کرے۔ پنجاب حکومت کے وکیل راؤ اورنگزیب نے درخواست کی مخالفت کی اور عدالت کو بتایا کہ رجسٹرار آفس کی جانب سے لگائے گئے اعتراضات درست ہیں۔ درخواست گزار نے مصدقہ نقول کے لیے کوئی درخواست نہیں دی۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر اعتراضات ختم کرنے یا نہ کرنے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا ہے کہ ہماری مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ اس سے دنیا میں پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا۔ بارشوں اور سیلاب نے بڑی تباہی پھیلائی۔ ہمیں مل کر متاثرین کی مدد کرنا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار میں پیپلز لائر فورم کے زیر اہتمام سیمینار کے انعقاد۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا، ہماری مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ اس سے دنیا میں پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا ہے۔ بارشوں اور سیلاب نے بڑی تباہی پھیلائی۔ ہمیں مل کر متاثرین کی مدد کرنا ہے۔ پنجاب میں بہت بڑا سیلاب ہے، لوگ بہت مشکل میں ہیں، اور صرف حکومت سے یا صرف چند لوگوں سے وہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ایک بہت بڑا امتحان ہے جس میں پنجاب کے ہمارے غریب لوگ جو ہے وہ گھرے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس ایک نیک کام میں شامل ہوں۔ جس طرح آپ جوش اور جذبے سے نکلتے ہیں اور تحریکیں چلاتے ہیں، اسی طرح باہر نکلیں اور اپنے ان غریب بھائیوں کو اس مشکل صورتحال سے باہر نکالیں۔ صدر ہائی کورٹ بار آصف نسوانہ نے سیمینار سے خطاب میں کہا کہ ہم نے ہمیشہ غیر جمہوری حکومتوں میں مزاحمت کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہائی کورٹ بار کی یہ روایت رہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ جمہوری لوگوں کو، جمہوریت پسند پارٹی کو، ان کے عہدیداران کو ہم نے یہاں پر انوائٹ۔ فی الوقت اتنا ہی۔